media regulations today, and we would be exploring different aspects of social media. The first thing which we are going to talk about is, हाँ जी। should social media platforms be regulated? Because social media हुँ, is a debate. You can agree with it, you can disagree, and you can have a mixed opinion. But in the exam, obviously, you should not be biased. You should present both sort of हाँ opinion जी। as a third person, as a observer, and later on in the end, you can conclude either generally, generically, or maybe you can conclude according to your opinions, right? Because social media had a perception that it is something which should be free to express, because common man cannot reach at conventional media on TV or newspapers or magazines. It's very difficult for a story of a common man to reach to such sort of media. However, social media is giving an individual a full, option, a world to interact with people, to get viral, and to हुँ, spread a message to a mass level. Same goes to, हाँ, if we talk about channels. Imagining coming on a channel and talking about your point of view, it's almost impossible. However, YouTube and similar platforms gave us option to run our own channel, having our own viewers, subscribers. People would be there to encourage us, support us, to criticize us, to help us improve. To become social media influencer, and obviously generating income from that. Uh, through YouTube monetization or Google monetization, as well as our own, marketing projects with different businesses. But that is a separate thing. But main thing is that the social media is giving, has been given, has been giving freedom to people. But now why people are and governments are talking about regulating it? So should it be regulated or not? We are going to talk about it, and obviously we would have our opinions. In a way, we would maybe half right and half wrong, something like that. So we should be always open minded to welcome new opinions, new thoughts, new sort of point of views. So the more difficult question is how to do this effectively while differentiating between their various forms. Like, if we talk about should it be regulated, so it has a more complex, because this question is not so easy or simple ke kya ye regulate hona chahiye or no. It's not like that. It has complications. Concerns about the public regulation of social media platforms emerged after, especially after 2016. इससे पहले थे, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे थे. गवर्नमेंट उसको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करती थी. गवर्नमेंट इनसिक्योर फील नहीं करती थी. हाउएवर 2016 की जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे और यूके में ब्रेक्सिट रेफरेंडम था. आई होप यू आर अवेयर ऑफ ब्रेक्सिट रेफरेंडम, जिसकी वजह से यस सर। यूके यूरोपीय यूनियन से सेपरेट हुआ था. हुँ, Well, and have been further articulated by public critics. तब ये गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा शुरू की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स connect consumers and customers with digital content creators and typically monetize their interactions through advertisement or advertising revenue and campaigns. Since platforms do not generally create their content, अब यहाँ पे platform means Facebook, Twitter, YouTube, Google, वो अपना content नहीं बनाते. They contend that, or they say that they are not responsible for what users produce and are, सर, yeah. अनस इज़ वेटिंग इन द वेटिंग रूम। सर अनस वेट कर रहा है. Okay, अनस let me, वेट कर रहा है. चलो ठीक है, I'm going to add him. So uh, so since they claim that they do not produce content, and thus they should be exempted from any libel or defamation or legal liabilities or other laws and regulations that govern traditional media like newspapers and TVs. So this is the claim that had been protecting social media platforms till now. In other words, they are platforms for free speech only and assume no responsibility for what their users communicate or share on their using their platforms. This claim is correct to the extent that they create little or their own content very rarely,
It is incorrect, however, to claim that they do not exercise editorial control over the content. आपको पता है, you cannot post any kind of information on Facebook without check and balance. You know that. और ये अब की बात नहीं है. A decade ago, 10 साल पहले भी अगर आप कुछ ऐसी चीज पोस्ट करते हो तो चीजें फिल्टर आउट हो जाती थी. टिकटॉक शायद आपने नाम सुना होगा, सबने सुना है, कुछ लोग यूज भी करते हैं, ऑल्दो इट हैज डिफरेंट ओपिनियन, वेस्ट ऑफ टाइम भी कुछ लोग बोलते हैं. टिकटॉक पे एक सोशल मीडिया beauty influencer, she was Muslim probably, or maybe not, I think no, she was a Christian actually, but she in one of her video suddenly she, during the conversation regarding beauty products, she started to talk about the maltreatment and mistreatment of Chinese Muslims, जिसको हम Uyghurs बोलते हैं. UIGER सम ऐसी जगह है, वीगर मुस्लिम्स, जो कि चाइना में, जिनको चाइना बहुत सप्रेस करने की कोशिश करता है ड्यू टू सम रीजंस. ठीक है, वो लैंड ऐसी जो चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुस्लिम्स है, वो छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनके फोर फादर्स उस लैंड से बिलोंग करते हैं. सो उनको फोर्स किया जा रहा है टू गेट रिड ऑफ, टू लीव देयर रिलीजन एंड टू बिकम लाइक अदर चाइनीज, यू नो, only loyal to one thing, that is the president and the government, not their god or religion, something like that. So people have different opinion. However, that girl, the social media influencer, started to raise awareness in the middle of a video because she was clever. She knew that if I would start my video with such a message, I may be blocked, or that particular video would be blocked. But you would be shocked to know that even during in the middle of the beauty discussion and thing, Chinese algorithms, the TikTok algorithm, in other words, uh, found her talking about a topic that was not good for the interest of Chinese government. And so, first of all, they blocked her video, and later on they blocked her TikTok channel. She was having millions of subscribers. So she was taken on board by Al Jazeera TV and few other TV channels. And then government and people and world, researchers started to criticize China and TikTok, that on one hand, they used to claim that we do not filter content. We do not interrupt people sharing their opinions. But on the other hand, they did that. इसका मतलब ये है, ये जो यहाँ पे एल्गोरिदम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब लोग कंटेंट को फिल्टर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये क्लेम नहीं करते. They had been doing it. However, now governments are forcing them कि इनको करना चाहिए, और ऐसी चीज जो कि एज अ पब्लिक लेवल पे, ह्यूज लेवल पे अगर हार्मफुल है, तो वो कंटेंट अगर पोस्ट हुआ तो वो प्लेटफॉर्म, यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इस तरह के प्लेटफॉर्म, वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे. एंड गवर्नमेंट्स डिफरेंट, अभी हम डिफरेंट कंट्रीज को भी एक्सप्लोर करेंगे. डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट टाइम दे रही हैं, कुछ 24 आवर्स का टाइम दे रही है, कुछ से कम टाइम दे रही है कि दैट कंटेंट should be auto removed or maybe manually removed, whatsoever. I hope you are getting it. तो सोशल मीडिया अगर इस एंगल पे देखें तो सोशल मीडिया कंपनीज क्या रेगुलेट, उन पर रेगुलेशन होनी चाहिए, और क्या यूजर्स पे रेगुलेशन होनी चाहिए, कि ब्लाइंड फ्रीडम होना चाहिए. इस पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं, हम इस पे डिबेट को आगे लेके चलते हैं. सो वेल, हम एल्गोरिथम्स की बात शुरू की तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी. गिवन देयर एबिलिटी टू पिन पॉइंट हु यू आर, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, ऑब्वियसली यू नो दैट वो आपको पिन पॉइंट भी कर सकते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज भी, और वैसे भी उनके एल्गोरिथम्स चूज कंटेंट एक्सक्लूसिवली फॉर व्हाट दे थिंक you want to hear and see, making frequent personalized editorial decisions based on your browsing behavior on their platforms. आप Facebook पे जैसे जैसे कंटेंट देखते हो, अगर हम वली की बात करें, अगर ये एनिमे या 3D एनिमेशन या ड्राइंग, इस तरह के कंटेंट को ब्राउज करेगा, तो फेसबुक उसको उसी तरह के पेजेस दिखाएगा. इट मीन्स कि फेसबुक इज लर्निंग अबाउट हिज बिहेवियर, एंड इफ दे आर, इट मीन्स कि वो कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं. तो व्हाई कांट दे टेक ओनरशिप ऑफ सम रॉन्ग कंटेंट जो कि पब्लिक की जनरल वेलबींग के लिए ठीक नहीं है.
जैसे वो कह रहे हैं if you use Facebook or Google to log in your geolocation information taken from a cell phone, ऐसा होता है, आप उनको पता चल जाता है जब आप गूगल पे सर्च करते हो फॉर एग्जांपल बीकन हाउस, तो बीकन हाउस वो आपके घर के करीबी बीकन हाउस को पहले दिखाएगा, ना कि यूएसए में कोई बीकन हाउस नाम की बेकरी है या बीकन हाउस नाम का कोई इंस्टीट्यूट है या कोई फ्यूल स्टेशन है, वो नहीं दिखाएगा आपको, वो यूएस की सर्च नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी जियो लोकेशन लेता है। Well, a complicating factor is that platforms choose this content based upon maximizing user time. वो इसलिए करे ताकि आपका बस ज्यादा से ज्यादा की एडिक्शन बढ़े, आपकी स्टिकीनेस बढ़े ऑन देयर वेबसाइट एंड प्लेटफॉर्म। देयर इज एन एज इन द मीडिया वर्ल्ड। एज मीन्स अ प्रोवर्ब, ठीक है, एडिज बोल सकते हैं या एज भी बोलते हैं इसको। इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स, यानी कि उर्दू में बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, इसी तरह ही है। मतलब इफ इट कीप्स ऑन कमिंग in front of you, in front of your audience, they may keep on consuming it and buying it. This refers to the fact that sensationalist और यानी जिसमें सेंसेशन होती है या वायलेंट होती है जो डिस्कशन या वो न्यूज़ या जिसमें स्कैंडल्स होते हैं, वो कंटेंट प्रोवोक करता है मोर इमोशंस एंड सिंपली सेल्स मोर न्यूज़पेपर्स और एडवर्टाइजमेंट। ऐसा ही है, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती है हम सारे गौर से सुनते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो नॉर्मल चीज़ है तो उसके लिए कोई भी नहीं बॉदर करता। तो इसलिए ये मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इस वजह से भी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को बैन नहीं कर रहे होते, विच इज़ रॉन्ग। हेंस देयर इज एन एक्नॉलेज्ड टेंडेंसी फॉर सोशल मीडिया टू शो इमोशनली explosive content that speaks to convictions concerning politicians, religion or other prickly topics. यानी आपको पता चल के कि एक एक्सप्लोसिव कंटेंट हो जाता है। अगर ट्वीट आ जाए किसी ऐसे इशू के बारे में तो दुनिया सारी उसके बारे में नोटिस करती है, ट्विटर के व्यूज बढ़ जाते हैं, उसके लॉगिन्स बढ़ जाते हैं, उसके हिट्स बढ़ जाते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर उसके सर्वर पे जाती हैं। दिस लीड्स यूजर्स टू शेयर कंटेंट विद इन देयर नेटवर्क्स in exchange for likes and additional share as a currency of status and self affirmation. हम सब लोग करते हैं। अब पबजी बैन हुई है, अब चाहे कोई पबजी खेलता या नहीं खेलता, लेकिन टू मेक पीपल नो कि जी मैं भी अवेयर हूँ, मुझे भी नॉलेज है, मैं भी आई एम लिविंग विद द वर्ल्ड, विद द डिजिटल वर्ल्ड। लोग हर एक स्कॉलर बन के पबजी के बारे में कमेंट कर रहा होगा, वीडियो बना रहे होंगे, जो प्रैंकस्टर है वो प्रैंक बना रहे होंगे एंड सो ऑन। तो दिस इज, और इस तरीके से पबजी का जो नाम है और ये चीजें और फेमस होंगी। While it might be unfair to hold Facebook or Twitter fully responsible for the recent electoral results in UK and US, जैसे आपको पता है उसमें बहुत से मसले हुए थे, हम उसके बारे में अभी बात भी करेंगे। कैम्ब्रिज एनालिटिका कौन सी कंपनी है जो कि एनालिसिस करती है कैम्ब्रिज में यानी यूके में, और फेसबुक ने उसको आपका डेटा सेल करता है। और स्पेशली इलेक्शन के दिनों में यूएस एंड यूके के जो थे सब्सक्राइबर्स थे उनका डेटा सेल किया था, जो कि अगेंस्ट द लॉ था। और उसके बाद फिर फेसबुक को अच्छा खासा फाइन भी हुआ है, क्वाइट अ मैनी $million, और वो यूएस की कोर्ट में एंड ब्रिटेन की कोर्ट में भी गया था। आई थिंक ब्रिटिश कोर्ट पे शायद नहीं गया था, पर यूएस की सेनेट एंड कोर्ट में वो गया था। सेनेट के सेनेटर्स ने उससे बहुत से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे थे, और आप गूगल कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे बेशुमार उसकी रोने वाली शक्ल वाली वीडियोस मिलेंगी जिसमें वो शदीद परेशान है, समथिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली द क्वेश्चंस वर प्रीटी ट्रिकी, और उसका एक गलत आंसर उसकी स्टॉक प्राइसेस जो होती हैं फेसबुक की बहुत डाउन आ सकती थी और आई भी थी, और शायद अभी भी आप देखोगे तो द एरो इज गोइंग डाउनवर्ड्स, बिकॉज जो फेसबुक ने लास्ट डेकेड में बूम एंजॉय किया था, इलेक्शन के बाद उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वेल, हम बात कर रहे थे कि फिर भी अनफेमिलियर होगा कि हम हर चीज़ फेसबुक और ट्विटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें, जो कि इलेक्शन में हुआ था। देयर इफेक्ट्स ऑन द राइज ऑफ पॉपुलिज्म एंड फ्रिंज movements as well as divisive tribalistic behavior we often see online. इसका मतलब ये है कि सिर्फ उनका कसूर नहीं है, लोगों के अंदर जो डिवाइसिव यानी डिवीजन पैदा करने वाला बिहेवियर आ गया है, या ट्राइबलिस्टिक बिहेवियर, यानी कि जो कहते हैं ना ट्राइबल और अपने ये जो ट्राइब होता है, सोशल ग्रुप्स होता है, उसके बारे में मतलब आपको अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है। आप कहते हैं यार इमरान खान ने कहा तो ठीक कहा होगा, नवाज शरीफ ने कहा तो ठीक कहा होगा, हाउ डेयर यू से दिस अबाउट माय लीडर, विदाउट इवन थिंकिंग कि आपके लीडर में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसने भी ब्लेंडर किए हैं, पॉलिटिशियंस ब्लेंडर करते हैं। तो ये बिहेवियर जो है ना, इसका फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है, ये लोगों के अपने बिहेवियर्स हैं।
which we often see online are topics of serious concern for psychologists, sociologists and political scientists, जो कि इसको ऑब्जर्व करें कि लोगों के बिहेवियर कितने इम्पेशेंट हो गए हैं, उनमें पेशेंस नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो सुनना नहीं चाहते। अगर आपका एक दोस्त है, आप उससे डिफरेंट ओपिनियन रखते हो सकता है वो आपको बाइकआउट कर दे, बैन कर दे, और यू नो समटाइम्स वी फील ऑफेंडेड। अब मेरे कुछ एक्स कॉलीग्स थे, kind of my friends, and but not my friends, my colleagues actually. They were my Facebook friends. I have to snooze them using Facebook option for 30 days regularly. ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी पोस्ट से मैं बहुत offend हो जाता हूँ, उनकी सोच से मैं offend हो जाता हूँ। तो instead of talking and chatting and replying to them and having an not unending या never ending series of chats and that will end up with a bad feeling about each other, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ब्लॉक तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं उनको उस तरह की पोस्ट को 30 डेज के लिए गॉन कर देता हूँ। लकीली फेसबुक पे ऑप्शन है। तो एनीवेज, बट स्टिल सोशल मीडिया की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू चैनलाइज योर थॉट्स, आई वांट यू टू बी ओपन माइंडेड कि दोनों तरफ से है ये प्रॉब्लम, एंड इसको फिक्स दोनों तरफ से करना है, यानी पीपल ने भी और प्लेटफॉर्म्स ने भी। अच्छा, जो यहाँ पे आपको मुश्किल या डिफरेंट या न्यू वर्ड्स होंगे या शायद कुछ बच्चों के लिए न्यू होंगे, उनके मैंने मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। एनीवेज, आगे मूव करते हैं इन दिस डिबेट। Diversity of opinion is certainly positive and good thing and has to be celebrated. But when platforms like Facebook are not held responsible for the accuracy of the content they present, because ultimately आप Facebook को use करके misinformation फैला रहे हो, गलत इन फैला रहे हो ना, तो there is no incentive for them not to show the most outrageous or fake. अब इन्होंने मेरे ख्याल से Facebook पे रियलिटी चेक या कुछ ऐसा चेक शुरू किया है जिसमें बहुत से लोग अगर किसी चीज़ को गलत कहते हैं तो वो चीज़ फेसबुक कहता है कि सॉरी इट्स वाज रॉन्ग। इसको मैंने ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली खुद भी, कि एक वीडियो आई थी किसी लेडी की जो कि जिसका नाम था कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की वाइफ है, उसको कोरोना हो गया एंड शी इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन, और वो अपनी कंडीशन में वीडियो पे आके लोगों को बता रही कि इट्स वेरी पेनफुल एंड लॉकडाउन में रहे एंड वेरी बहुत एहतियात करें। तो मैंने उसको लाइक किया, शेयर किया, मैंने कहा चलो यार लोगों को अच्छा फ़ायदा होगा इससे। बट आफ्टर 2 और 3 डेज मुझे फेसबुक ने रियलिटी चेक भेजा कि आपकी पोस्ट हमने रिमूव कर दी है बिकॉज दैट वाज फेक एंड फॉल्स। देन आई डिस्कवर्ड कि वो जो लेडी थी वो जस्टिन ट्रूडो की वाइफ थी नहीं। बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया होगा, कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होगा, तो लिहाजा उन्होंने वो पोस्ट भी डिलीट कर दी, विच इज़ गुड, ठीक है। लेकिन क्या ये हर केस में करेंगे, स्पेशली इलेक्शंस वगैरह टाइप के केसेस में? आई डोंट नो। या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के केस में करेंगे, यानी एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिया या एनी अदर काइंड ऑफ जो एक सेंटिमेंट्स चलते हैं, या ब्लैक लाइफ मैटर जो है, इस तरीके से टॉपिक्स पे क्या वो इतने एक्टिव होंगे? देखना पड़ेगा। एक्सेसिव सोशल पोलराइजेशन इज अनडिजायरेबल। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? हमने पोल्स देखे हैं, ऑपोजिट पोल्स होते हैं, तो इतना ज्यादा सोशल एक्सट्रीमिज्म, यहाँ पे भी इसका मैंने आपको मीनिंग लिखा हुआ है, डिवीजन इनटू टू शार्पली कंट्रास्टिंग ग्रुप्स। यूं कह लो कि सोशल एक्सट्रीमिज्म जो हो गया है बहुत ज्यादा, यानी लोग बहुत एक्सट्रीम ऑपोजिट सोच रहे हैं, वो न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अगर पाकिस्तान की मैं आपको सिनेरियो में बात करूं तो जो इमरान खान को नापसंद करता है वो इमरान खान के अच्छे डिसीजन को भी कहेगा नहीं जी नहीं, ये गलत है, ये बात गलत है, वो सपोर्ट नहीं करेगा। अब जैसे टैक्सेस वो लगा रहा है, ठीक है, हम सब उसको अफेक्ट हो रहे हैं, और उसको लोग गलत कहेंगे, लोग कहेंगे जी आप बस कर्जा लो और मुल्क चलाते जाओ जैसे पहले लोग कर रहे थे, महंगाई ना करो, समथिंग लाइक दैट। तो ये गलत बात को गलत कहें, ठीक बात को ठीक कहना चाहिए, लेकिन ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है, एज इट erodes and the democratic institution that protect free speech and other basic rights। अब ये जो फ्रीडम प्रेस था ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन समझा जाता था कि लोगों को फ्री स्पीच मिल रहा है, लेकिन अब वो जो है इरोड हो रहा है लोगों के एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर की वजह से, विदाउट some basic consensus on the common objectives of social welfare, democracies weaken and become dysfunctional or corrupt। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप एक पॉइंट पे नहीं आएंगे तो ऐसे ही होगा। just like a chemical company that has to abide by environmental regulations,
The social cost associated with social media platform should be controlled to mitigate its worst effects. अब केमिकल कंपनीज जो लेट से केमिकल बनाती है और वो कहे कि जी हमने तो केमिकल बनाया था पॉजिटिव यूज के लिए, ठीक है, लेकिन लोग अगर नेगेटिव यूज करने लग जाए तो हमारा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। जो वेपन बनाने वाली कंपनी वेपन्स बनाए, ठीक है, और लोग इसको मिस यूज करे तो वो कहे हमारा कसूर नहीं, नहीं आपका कसूर होता है। हाउ यू कैन इंश्योर पब्लिक सेफ्टी, हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, कैसे आप चेंजेस ला सकते हो, इवॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम जूम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जूम पे कभी इतना बर्डन पहले नहीं आया था सर्वर्स पे, जूम शुरू में क्रैश भी कर जाता था, जूम में हैकिंग अटैक्स भी हुए, लेकिन जूम ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रैक्टिस किया है। अब जूम इज वे सिक्योर, वे बेटर, वे स्टेबल सॉफ्टवेयर देन इट वाज इन February and March. You might have noticed, being a teacher, जब मैं क्लास होस्ट करता था तो अक्सर मेरा क्रैश कर जाता था और कोई सर्वर एरर आ जाता था जब उस पर बर्डन होता था, लेकिन ऑब्वियसली दे हैव इन्वेस्टेड और उनको फंडिंग भी काफ़ी मिली है, आई गेस गूगल से एंड फेसबुक से, सोशल कॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे वो खान अकेडमी को भी स्पॉन्सर करते हैं, खान अकेडमी भी एक प्लेटफॉर्म है, आई एम श्योर आपको पता होगा, जो कि फ्री लेसन्स एंड लेक्चर्स अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स पोस्ट करते हैं। तो इस तरह की फंडिंग इनको बड़ी ये जो कॉर्पोरेट्स है करती हैं। Anyways, the final concern about social media platforms is that by collecting so much demographic and behavioral data from our online activities, they can create a very precise digital model of who we are with significant predictive accuracy. ये भी एक नया कंसर्न है कि वो तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन इनको मिल चुकी होंगी, ठीक है, और देन दे सेल दीज प्रोफाइल्स, आवर डिजिटल ट्विन्स और एवटार्स। वो जो प्रोफाइल है हमारा बिल्कुल रेप्लिका होता है, ठीक है, उसकी हैबिट्स, उसकी हॉबीज, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसकी वेकिंग एंड स्लीपिंग स्केड्यूल हमारे जैसा होता है। अब फेसबुक को पता है कि वली आज मैं तुम्हें एज एन एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, वली रात को कब सोता है, कब जागता है, कितने घंटे गेमिंग करता है, जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। अगर और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है उनकी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। और देयर आर थर्ड पार्टीज जो कि इन तमाम प्लेटफॉर्म से डेटा परचेज करती है और एक यूजर का बिल्कुल नियर टू रियलिटी प्रोफाइल क्रिएट कर लेती है कि उसके बारे में सारा उनको इंफॉर्मेशन होती है। दे डू दिस विद लिटिल एक्सप्लिसिट नॉलेज और कंसेंट फ्रॉम द यूजर्स। और आपको पता भी नहीं है, जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते थे फेसबुक पे कोई चीज करते थे तो वो आपको कहता था जी वुड यू लाइक टू शेयर give this app an access to your camera, to your gallery, to your this and that, to your public profile। आप कहते yes yes yes, बस इंस्टॉल कर दो मुझे। अब आपको उसकी nitty-gritties का नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो आपकी उस माइनर परमिशंस का बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे होते हैं। Moreover, users have no rights over than metadata। अच्छा, मेटाडेटा ये कंप्यूटर साइंस की टर्म है और यह हसनैन को पता होगा। मेटाडेटा होता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। हसनैन इसके बारे में थोड़ा बताओ। हसनैन, are you there? चलो मैं बताता हूँ, सिंस वीडियो रिकॉर्डिंग। जी सर मैं फिरोज ने हूँ वो, मगर सर ये हमने अभी तक अभी इन डेटा सर मतलब इन डिटेल नहीं सब पढ़ा अभी। अच्छा ठीक है, मेटाडेटा ये डेटाबेस जब आप पढ़ोगे डेटाबेस की टर्म है। ये मेटाडेटा मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। ये क्या बात हुई, डेटा अबाउट डेटा, सो फनी, सो कंफ्यूजिंग। देखो आपका डेटा है लेट्स से वली, लास्ट नेम, वली का जेंडर, वली की एज, ठीक है, ये मैंने 4 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वली के बारे में बताया। जो इंफॉर्मेशन है ये वली का डेटा है, लेकिन वली की मैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गेट कर रहा हूँ ये उसका मेटा डेटा, यानी स्ट्रक्चर, नेम, वली की बात नहीं कर रहा मैं, नेम की बात कर रहा हूँ, नेम, जेंडर, एज, हॉबीज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया, ब्लड ग्रुप, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये सारी चीजें जो है ना जनरल, जो जैसे हम एक्सेल में कहते हैं हेडिंग का या कॉलम नेम्स, ये मेटा डेटा होता है। तो डेटा के बारे में डेटा, अब आपको नहीं पता इन अदर वर्ड्स कि आपको राइट भी नहीं है, उसको उन्होंने आपको राइट दिया ही नहीं फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कि हम आपका कौन कौन सा डेटा चूज कर रहे हैं और आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। और वो कहते भी है कि मार्केटिंग पर्पसेस के लिए, तो वो बहुत आगे तक बात चली जाती है, ठीक है। वेल इट इज अ competently asymmetric relationship। सिमेट्रिक होता है जिसमें दोनों साइड्स, जो दोनों पार्टीज होती हैं वो एग्री करती हैं। एसिमेट्रिक में एक साइड की मर्जी चल रही है, जैसे फेसबुक की या सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स की मर्जी चल रही है। जब मैं फेसबुक बोलूँ डजंट मीन जस्ट फेसबुक ओनली,
Here I'm talking about all other platforms like Twitter, TikTok, Snapchat, blah blah blah. अच्छा, a first-in bargain where इसका मतलब होता है in exchange for carrying out searches जो हम करते हैं या social networking and taking advantage of geolocation services, जो हमें फ़ायदा होता है अपनी लोकेशन फेसबुक को परमिट करने का कि हमें अपनी विसिनिटी के एड्स उनकी डील्स मिलती हैं, समथिंग लाइक दैट. We as users allow these platforms into the most intimate corners of our lives with little understanding of how or which of our secrets they sell. ऐसा है बिल्कुल. आपको मैं रियल केस बताता हूँ. It happened with me. I got a call, fake call from the real number of UBL Bank, from the real call center of UBL Bank with real people talking in the back, taking calls, and the guy knew my name, my CNIC, my mother name, and my date of birth. He knew 95% of the information which were supposed to be very personal and which can be used to do banking transaction or any fake identity of mine. However, the only thing which he needed was a 5-digit one-time password, जो कि उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ऐसी की होती है कि वो उनके कॉल सेंटर एजेंट्स को नजर नहीं आती, वो सिर्फ सिस्टम थ्रो कर सकता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स पे. तो उसने मुझे कॉल किया. ही सेड मी के सर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम यूबीएल एंड वी आर अपग्रेडिंग आवर सिस्टम. Usually it's a prank or it's a fraud, you can say. However, since recently I got my new debit card, so I thought कि शायद उसी वजह से कॉल आ रही है. So I took interest in what he was trying to say, and he said कि सर आपको मैंने भेजा password आया. मैंने कहा बिल्कुल आया. सर can you need to tell me ताकि मैं आपका system update कर दूँ and आप उसको flawlessly use कर सकें. Then it raised a red flag in my mind and I thought, oh no, this is going to be some scam. और मैंने उसको डांटा, बोला और मैंने उससे कॉल ड्रॉप कर दी. And then I went to bank and I came to know that it was a fraudulent activity and many employees or contractual employees became rogue and they are misusing the information to do fraudulent activities. तो अब यूबीएल कहे जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. मैंने कंप्लेन यूबीएल में की, बट आई एम प्लानिंग टू कंप्लेन टू सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. व्हाई? इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी to keep my data secure from their employees and वो misuse होता है तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. इसी तरीके से ये सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं जो आपका डेटा के सेल कर रहे, दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस. नॉट मे बी फाइनेंशियली डेंजरस ना हो या हमारी वो सेंस नहीं है, लेकिन वेस्ट में people have sense. I was watching a video जहाँ पे a policeman was there to investigate something and the girl was saying get out of my property first. ये मेरी property, you cannot stand here. प्रॉपर्टी से बाहर जाओ, जो बात करनी मुझसे करो, मेरे घर के लॉन से गेट आउट हो जाओ. शी वाज बिकॉज वहां पे लॉ, लोगों को राइट्स का पता है. हमारे यहाँ पे राइट्स हैं भी तो वो प्रैक्टिस नहीं होती है, हमें पता नहीं है, तो या हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं. सो बट सिंस वी आर डिजिटल एंड ग्लोबल सिटीजन ऑफ सोशल मीडिया, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है. सोशल मीडिया पे हम सब एक नेशन है, दैट इज डिजिटल नेशन. दैट इज व्हाई वी शुड नो द डूज एंड डोंट्स एंड ऑल द internal criticalities. अच्छा, it's time to pause here. हम इंशाल्लाह from next lesson यहीं से resume करेंगे. We will have, hopefully, I will let you know either a live lesson or recorded lesson tomorrow. मैं आपको बता दूंगा, ठीक है. मैं आपको by morning 9 AM I will message you in the WhatsApp group. Yes, and if you will be kind enough तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है. So we are going to pause here, okay? And I hope कि आपको इस डिस्कशन से थोड़ा सा दिमाग खुला होगा रिगार्डिंग सोशल मीडिया, और इसके ऊपर आपने खुद से भी रिसर्च करनी है कि क्या इस पे रेगुलेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तो किस हद तक होनी चाहिए, ठीक है. यू हैव टू रिसर्च ऑन इट. मैं भी आपसे 3-4 हैंडआउट शेयर करूंगा, फिर हम इस पे भी असाइनमेंट करेंगे. चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय बाय. ठीक है सर. Allah Hafiz, sir.